Hello aspirants and welcome to all of you in today's session, HIS. Now, one of the very common thing that students should be asking कि भाई अगर हमें अच्छी रैंक लाना है, if I have to be on the top 100, then what should be my timetable, what should be my approach? मेरा approach क्या होना चाहिए, मेरा timetable क्या होनी चाहिए, and that is the question I want to discuss. So as an aspirant, I want to discuss two things, that आपके timetable, preparation timetable कैसा होना चाहिए, and what should be the approach. Now remember the two things. The first is preparation should be time bound. And this should be second, it should be directional. आपको directional approach से और time bound approach से काम करना होगा. Second is now if you go through a lot of toppers strategy, toppers की strategy में आपको कुछ common चीजें मिलेंगी. For example, they started early, their mindset is clear, they start as a beginner, learned by making mistake. The journey, हर aspirant की journey अलग होगी, किसकी journey छोटी होगी, but they were clear in terms of bang on. So preparation की preparation करिए. Invest some time in understanding the requirements of examination and then study. Don't randomly prepare for the examination. पहले preparation की preparation करिए. Start with the basic, then you develop your timetable. So once you understand कि भाई आपका एक timeline set होना चाहिए कि macro level में मुझे कितना time चाहिए. For example, the journey of aspirant जो होगी वो minimum 12 to 15 months होगी. And you can divide the macro targets into three parts: prelims, mains and revision. That means आपकी preparation जो पहले होगी वो common pre plus mains की होगी, then specifically mains की preparation होगी, and there will be revision strategy. Naturally इस पूरी journey में I personally feel you will take a minimum 12 to 15 months, maximum 18 months. तो अगर people who are targeting 26, now is the time to start early because that is how you're going to focus your prelims, your mains and your revision approach. Now you remember where you're looking at the exam schedule, एक weekly plan होना चाहिए and हमेशा GS से start करिए. And when you start with general studies, there are three areas that आपके daily schedule में part होना चाहिए: static, dynamic and revision. Now मेरे से students हमेशा पूछते हैं sir how many hours I should be studying. I tell them 1/3 rule, यानी आपका preparation एक job की तरह लीजिए and 8 hours is what you should look at. If you are able to invest 7-8 hours consistently, तो आप 12 से 15 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी. If you are able to invest 4 hours, then automatically your journey will be little longer. आपकी journey बढ़ जाएगी accordingly. So preparation में आपका weekly study plan होना चाहिए, but weekly plan के हिसाब से पहले macro timeline set होनी चाहिए. And you have to understand your tentative कि मुझे tentative targets हमारे क्या हैं और कैसे हम करेंगे. If you have joined the coaching और अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो टेक द हेल्प ऑफ अ मेंटर और गाइड जो आपकी प्रिपरेशन को हेल्प कर पाए. नाउ व्हिच सब्जेक्ट्स टू स्टार्ट विद. एक कॉमन अप्रोच है कि हम किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें. आई ऑलवेज टेल एस्पिरेंट कि आप उन सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए जो प्री प्लस मेंस से पहले कॉमन है, बिकॉज फर्स्ट यू विल गिव प्रीलिम्स, देन यू विल गिव मेंस और फिर आपका सिलेक्शन होगा. तो प्रीलिम्स वाला पार्ट पहले स्टार्ट करिए, देन यू गो फॉर मेंस. फोकस ऑन प्राइमरी एनसीईआरटीज, यानी पहले आप प्राइमरी एनसीईआरटीज फोकस करिए, डेवलप योर बेसिक्स एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल. तो इफ यू लुक एट द प्रीलिम सिलेबस, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हमारे प्रीलिम सब्जेक्ट में है. सो व्हेन यू लुक एट द प्रीलिम सिलेबस, सो वी हैव सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक. सो व्हेन यू लुक एट दीज सिलेबस, तो ये हमारे कॉमन एरियाज हैं: इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक. सो दीज आर द 6 एरियाज एंड करंट अफेयर जहां से आपकी यूपीएससी पूछेगा. तो यू शुड फोकस ऑन द फर्स्ट, ये 4 जो सब्जेक्ट्स हैं, बिग 4, दिस शुड बी योर फर्स्ट अप्रोच: इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. नाउ डेवलप योर राइटिंग स्किल. अपने राइटिंग स्किल्स पर इन्वेस्ट करिए. When you are learning, always write, learn to write, understand UPSC is about effective writing, effective communication, and writing has to be done in a structured manner. Newspapers, very important or not important? Well, I would say important. आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए, नोट्स बनाना आना चाहिए, न्यूज़पेपर कैसे वर्क करेगा. ओके, नोट्स मेकिंग इज अगेन इक्वली इंपॉर्टेंट. सो एज एन एस्पिरेंट ये सारे बेसिक्स पर आपको स्टार्टिंग के 6 मंथ में यू शुड इन्वेस्ट. और आपके शेड्यूल में नोट्स मेकिंग, न्यूज़पेपर राइटिंग, न्यूज़पेपर पढ़ना, आंसर राइटिंग करना आपके डेली के शेड्यूल में ना हो तो एटलीस्ट दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर रूटीन सिलेबस. सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग आपके डेली वीकली शेड्यूल में, ऑलवेज दिस शुड बी टाइम फॉर दीज एरियाज. और आप करेंगे तो चीजें आपके लिए वर्क करेंगी. कोई भी एस्पिरेंट अगर तैयारी कर रहे हैं, दे शुड ऑलवेज रिमेंबर ये जर्नी बेटा लंबी चलेगी, 2 से 3 साल चलेगी. इस जर्नी के अपने स्ट्रगल्स होंगे. आई हैव सीन द सक्सेस स्टोरीज ऑफ एस्पिरेंट जहां उन्होंने 0 से स्टार्ट किया एंड देन गॉट इन द लिस्ट. नाउ यू शुड बी आस्किंग व्हाट एग्जैक्टली दे डिड व्हिच वाज डिफरेंट फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ क्राउड. उन्होंने ऐसा क्या किया जो हमने नहीं किया, एंड दैट विल मेक अ डिफरेंस. सो एज एन एस्पिरेंट, लेट्स इन्वेस्ट, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, push forward and make real effort in the journey, and outcome should be defined. So
एफर्ट करते हैं, लेट्स टेक थिंग्स टू नेक्स्ट लेवल। गुड विशेस, गॉड ब्लेस यू, कीप अप द गुड वर्क एंड बाय बाय।